केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसानों का पिछले कई दिनों से आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमा पर हजारों किसान पिछले कई दिनों से डटे हैं। किसानों के समर्थन में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर कृषि कानून के प्रति विरोध दर्ज किया। उनके अलावा अकाली दल के नेता रहे सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटाने की बात कही है। आपको बता दें कि प्रकाश सिंह बादल को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बादल ने राष्ट्रपति कोविंद को पत्र लिखते हुए कृषि कानून का विरोध किया, किसानों पर एक्शन की निंदा की और इसी के साथ सम्मान वापस किया। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया एक्स सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कर्नल अशोक चौहान भी आप किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं कोलकाता फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट सह अधिवक्ता सुश्री त्रिशा चक्रवर्ती ने भी कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये किसान के साथ अन्याय है, सरकार को ये बिल वापस ले लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। वाहिगुरू की फतेह। मेरी बेनती निहंग सिंह जथेबंदियां ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਿਆ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। ਅੱਜ ਉਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਆ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਸਾਂਭਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਚੜਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਮਰਨਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਥਾਜ ਨਾ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਓ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਤਾਜ ਨਾ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ की फतेह। मैं कर्नल अशोक चौहान आज आप सबसे मुखातिब हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज देश में बहुत ही चिंताजनक हालात बने हुए हैं। भारत सरकार की कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। पिछले 5 साल से देश के तमाम सैनिक अपनी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार ने हर जगह प्रचार तो बहुत कुछ किया है लेकिन दिया आज तक कुछ भी नहीं। ये बहुत ही एक दुख की बात है कि सरकार देश के सैनिकों के साथ इस तरीके का बर्ताव कर रही है। आज जो हालात बने हुए हैं कि देश की किसान जाति, तमाम राज्यों से फार्मर्स इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने जल्दबाजी में कोरोना काल के अंदर हालात का फायदा उठाते हुए जिस तरीके से 3 ऑर्डिनेंस पास किए हैं, ये किसान विरोधी हैं। मैं इनका फुल जोर इसका
खंडन करता हूं और मैं अपना विरोध दर्ज कराना चाहता हूं कि सरकार का रवैया किसानों के प्रति बिल्कुल ही गलत है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि देश की 80% जो अर्थव्यवस्था है वो किसानों के दम पर चलती है, और आज वही किसान जब अपनी बात रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, भारत सरकार से मिलना चाहते हैं, तो उनको राजधानी में बढ़ने की इजाजत नहीं है। हरियाणा सरकार का जो रवैया रहा है, जगह जगह रोड ब्लॉक लगा देना, जगह जगह सड़कों के ऊपर, हाईवेज के ऊपर खड्डे खोद देना, किसानों को टीयर गैस मारना, किसानों के ऊपर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करना, क्या यही प्रजातंत्र है? क्या हम कह सकते हैं कि इस देश में जनता को अपनी बात कहने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। मैं आज दावे से कह सकता हूं कि आज जो सरकार का जो रुझान है जनता के प्रति, वो बहुत ही एक डरावना रुझान है। हर आदमी डरा हुआ है। जंतर मंतर के ऊपर देश के सभी लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आते थे, जो मौजूदा मोदी सरकार ने वो बंद कर दिया गया है। आज के किसान पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम जंतर मंतर के ऊपर जाकर भारत सरकार को अपनी बात कहें, मगर भारत सरकार फिर उनके साथ चाल चल रही है। ये सरकार की जो नीति है किसानों के आंदोलन को दबाने की, बहुत गलत है। खबरों में ये भी आ रहा है कि जगह जगह सरकार ने अपने नुमाइंदे एजेंट्स भेजकर वहां पर दंगे फसाद भी करवा रही है ताकि किसानों की बदनामी हो। सरकार कल ये भी कह रही थी कि ये किसी विदेशी ताकत का हाथ है। क्या भारत का किसान किसी विदेशी ताकत से मिल सकता है? ये बिल्कुल सरासर गलत है और मैं इसका पूरा विरोध करता हूं, इसका खंडन करता हूं। जितने भी किसान आज दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं, ये सब अपने किसान यूनियंस के माध्यम से आए हुए। मैं बताना चाहता हूं, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ सरकार का अपना एक तरीका है कि आंदोलन को खत्म किया जाए ताकि सरकार के ऊपर दबाव कम हो जाए। बहुत ही गलत रवैया चल रहा है। मैं देश के हर आदमी से अपील करूंगा कि आप अपने किसानों का, अपने भूमि पुत्रों का दिल से साथ दें और उन्हें दिल से समर्थन दें, और सरकार से अपील करें सभी मिलकर कि आप किसानों के हक की बात कीजिए। और इसी के साथ मैं त्रिशा चक्रवर्ती जो वेस्ट बंगाल से हैं और मौजूदा हालात में अभी झारखंड धनबाद में हैं, हमारी सपोर्ट कर रही हैं, उनका जो पूरा जो ग्रुप है उसको भी मैं थैंक यू करना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार जल्दी ही हमारे किसानों की हित की बात करेगी। थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद, सत्यमेव जयते। पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी चैनल का, जिन्होंने ये मौका दिया, ये आवाज पहुंचने के लिए पूरे हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, मैं आज जो आंदोलन चल रहा है किसानों का जो आंदोलन है वो समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, वो तमाम भाइयों बहनों जो कि जुड़े हुए हैं मुझसे, और इस प्रक्रिया से जहां ये बिल पास होती है उसके बाद तमाम 500 से ज़्यादा ऊपर किसान अपना विरोध का दर्शन करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। उनको किस तरीके से रोका गया बीच में चौराहा पर, उनको किस तरीके से हैरस किया गया, उनको किस तरीके से उनका आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ बात हुआ है और जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया एक्स सर्विसेज वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि ओल्डेस्ट एसोसिएशन है सैनिक का। तमाम वो सैनिक भी जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी दिया है इस सेना बल में, और ये देश का सुरक्षा के लिए, टेरिटरी को बचाने के लिए, हम लोगों जैसे आम लोगों को सुरक्षा देने के लिए, चैन से सोने के लिए, और वो लोग भी हमसे जुड़े हैं ये किसान का आंदोलन के साथ। क्यों? क्योंकि जो किसानों का आंदोलन है वो सिर्फ उनका आंदोलन नहीं है, निजी आंदोलन नहीं है, ये भी एक राष्ट्रवाद है, और जिनका समर्थन हम लोग करते हैं। विरोध इस बात का है कि आवाज नहीं सुना जा रहा है, जो कि हमारा हक है। संविधान ने यह हक दिया है, और जिस तरीके से उनको रोका गया ये असंवैधानिक है,
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसे कोई किसी को नहीं रोक सकता। यू सी, जो 1989, that time also it was a protest by the tenants, by the farmers, but no such kind of malpractices has been done. But today it has been done. We are not against any kind of government. We are not against any kind of judiciary or any parliament system. We have been infringed by the rights. जो ये rights है किसानों का, और ये rights को अगर वो अपना हक मांग रहे हैं, किसी का रोटी छीन के मांग नहीं रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो उनको सुना क्यों नहीं जा रहा है? उनके डिमांड क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? अगर कोई ऐसा बात होती तो उन्होंने, आज मीटिंग होने का बात था 9 बजे तक, आज उनको सुनने का मौका मिला है, जबकि इतने सारे बुजुर्ग किसान भी वहां पे बिना खाए बिना नहाए पड़े हुए हैं, इतने ठंडी में गड्ढे खोदे गए रास्ते भर, उनको पहुंचने नहीं दिया गया। ये किस तरीके का भाव लेके हम लोग चल रहे हैं? क्या यही हम शिक्षा और प्रदर्शन देना चाहेंगे हमारे आने वाले जनरेशन को? जब जब ऐसा आंदोलन छिड़ा गया है, इतिहास गवाह है कि वहां क्रांति आई है, और ये क्रांति का ही आरंभ है, ये क्रांति होके ही रहेगी, क्योंकि ये हक सिर्फ उनका हक का बात नहीं है, ये उस मिट्टी का हक है जो प्रकृति माता ने दिया है, जहां हम जन्म लेते हैं। मुझे गर्व है अपने मिट्टी पर, मुझे गर्व है उस किसानों पर, मुझे गर्व है इस भारत वर्ष पर। और यहाँ पे किसान उनका बेटा है, और हम सभी लोग कहीं ना कहीं से इस मिट्टी से, किसान से जुड़े हुए हैं। India is an agricultural country. The prime occupation of India is agriculture. Nobody, no citizen of India cannot deny the fact that they have not been related to the cultivation or agriculture. So, अगर वो जड़ अगर हिलाया जा रहा है तो आंदोलन होना आम बात है। ये एक बहुत पीसफुल आंदोलन है, इसको शांति से सुना जाए, मेरा दरखास्त है। हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर ये सुना जाए, ये डिमांड को सुना जाए, और ये मर्सी करे एटलीस्ट सरकार सुन के कि जो बात रखने जा रहे हैं उन यूनियन लीडर्स को, उनके साथ बैठे और शांतिपूर्वक एक डिसीजन में आए। इंडिया पैंडेमिक से गुजर रहा है, कोविड का सिचुएशन से गुजर रहा है, इससे भलाई यही होगा कि सबको एक मौका दिया जाए और सुना जाए। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहाँ पे सिस्टम का बात कर रही हूँ मैं, और मेरे साथ अशोक सर भी जुड़े हैं और उन्होंने अपना लिखित समर्थन दिया है, और उनके साथ उनका पूरा कम्युनिटी, सैनिक कम्युनिटी का सैनिक भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और जो मीडिया को इतना गंदा बोला जाता है, वो मीडिया ही ये काम कर रही है, हमको एक देश एक नागरिकता से जोड़ रही है, बिना कोई डाइवर्सिटी एक यूनिटी से जोड़ रही है, वो ये मीडिया ही है। तो मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, और ये आवाज़ बुलंद रहेगी, इसको शांतिपूर्वक मैं दरख्वास्त करूँगी कि इसको सुना जाए, और हक का जो लड़ाई है इसमें शामिल होने के लिए मैं सबको आह्वान करती हूँ। और देश का हित के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब रोज़ी रोज़गार की बात हो तब सब अपना आवाज़ उठाए, अपना पक्ष रखे, क्योंकि जब हक मारा जाता है तो ये सिर्फ एक घर जलता है ऐसा नहीं, पूरा एजुकेशन, उस घर का बच्चा, उस घर का जो बुजुर्ग है, वो सभी लोग, पूरा एजुकेशन सिस्टम से लेके पूरा फाइनेंशियल सिस्टम से लेके होल इकोनॉमिक गेट डिसबैलेंस, डिसरप्शन क्रिएट। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सत्यमेव जयते।